my time, it was a lot of people there. Union Minister Prakash Javadekar says Prime Minister's appeal to spiritual leaders to popularize vocal for local for Atmanirbhar Bharat finds a huge response among prominent spiritual leaders. Saints and seers from across the country pledged their support for the cause. President Ramnath Kovind commends JNU for multidisciplinary approach as outlined by National Education Policy during his 4th JNU annual convocation address. Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank also present in the function. BJP asks Congress leadership to come clean on allegations that kickbacks were paid to them in Augusta Westland VVIP chopper deal. COVID-19 situation in India continues to show an improving trend. Daily recoveries outweigh daily cases for 46th day. Slew of measures underway after Home Minister Amit Shah's November 15 meeting to tackle the situation in Delhi. Delhi University's new academic session commences today as colleges reopen with online virtual classes. The Law Committee of GST Council meets today to discuss the issue of fake GST invoices, collusions and input tax credit, also to discuss measures for tightening of GST registration process. Official sources hint at an intensified drive against fake GST invoices. And Trump administration announces partial withdrawal of US forces in Afghanistan, also announces a modest reduction in US troops in Iraq. Senate Majority Leader Republican Mitch McConnell opposes pullout, cautions against major changes in defense policy in the run-up to White House transition. Hello and welcome. You're watching DD India and DD News with me, Munmin Bhattacharya. Our top story, Union Minister Prakash Javadekar in a tweet said that Prime Minister Narendra Modi's appeal to spiritual leaders to help popularize vocal for local for Atmanirbhar Bharat found a huge response among prominent spiritual leaders. Saints and seers from all over the country have come forward and have pledged their support for the cause. Prime Minister Narendra Modi in a tweet has condoled the demise of Mridula Sinha, former Goa governor. In a tweet, PM said, Srimati Mridula Sinha ji will be remembered for her efforts towards public service. She is also a proficient writer, making extensive contributions to the world of literature as well as culture. Anguished by her demise, condolences to her family and admirers. Om Shanti. Our correspondent Sudhakar is joining us on the phone line. Sudhakar, Mridula Sinha, who was the governor of Goa, is no more now, but she had a prolific political career and she was also an author, isn't it? जी बिल्कुल मनमोहन, एक तरह से आप कह सकते हैं एक साहित्यकार, एक राजनेता, एक सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हुआ और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया, दुख जताया और प्रधानमंत्री अपने जानकारी भी दी कि क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने। वो एक तरह से गोवा की पहली फुल फ्लेज राज्यपाल थी और जैसा प्रधानमंत्री के शब्दों में कहे तो जो उन्होंने पब्लिक सर्विस किया अपने पूरे जीवन काल में, उसके लिए उनको याद किया जाएगा। एक बड़ी राइटर मानी जाती थी, खासतौर से बिहार के एक तरह से बिहार की जो लोक गाथा है उनको उन्होंने कहानियों के माध्यम से, किताब के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने रखा और कम से कम 46 से ज्यादा बुक्स जिसमें नॉवेल्स हैं, स्टोरीज हैं, यात्रा वृत्तांत है, तो तमाम तरह के बुक्स उन्होंने लिखे। उसमें से कुछ बुक्स पे शॉर्ट फीचर और सीरियल भी बने हैं। तो निश्चित तौर पर एक साहित्य जगत में उनका खासा दखल था। राजनीति में भी एक उनका बहुत लंबा अनुभव था। 80 के शुरुआती दशक में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी और
गोवा के राज्यपाल बनने तक वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रही और सीनियर सदस्य के तौर पर। और उन दोनों में जब बहुत ज्यादा महिला सदस्य नहीं थी, उन दोनों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कमान संभाली थी 2008 से 10 के बीच, और 2012 से 14 के बीच वो बीजेपी की महिला मोर्चा की भी प्रभारी रही थी। इसके अलावा जो डिफरेंट जो विंग्स थी बीजेपी की, उसमें भी उन्होंने सर्व किया था। और छपरा जैसे एक छोटे से शहर से आती थी, लेकिन उन्होंने जो अपना अध्ययन, हमको पता है कि 4 दशक पहले ऐसी स्थिति की थी कि कम उम्र में भी लड़कियों की शादी हो जाती थी, तो शादी के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखा। और जाहिर तौर पर इसमें उनको अपने पति का भी साथ सहयोग भी मिला। उनके पति रामकृपाल जी बाद में बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर भी बने थे, तो उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की, डॉक्टरेट की, वो कॉलेज में लेक्चरर भी रही। फिर उन्होंने एक अपना स्कूल खोला था और उस दौरान उन्होंने तमाम बिहार के तमाम जगहों की यात्राएं की थी और गांव वालों से खासा उनका इंटरेक्शन रहता था, और उसकी वजह से ये जो लोक कथाएं वो लिख पाती थी। तो बहुत गहरा अनुभव साहित्य में, संस्कृति जगत के मंच पर। और ये चीजें जब वो गोवा की राज्यपाल बनी, तो इस दौरान भी उन्होंने राजभवन में गाय या बछड़े को गोद लेने की बात हो, इस तरह की तमाम चीजें, या गोवा में सांस्कृतिक चीजों को आगे बढ़ाने की बात हो, उसको लेकर कई तरह की पहले की थी। और निश्चित तौर पर उनका जो इतना बड़ा योगदान था, और जो बिहार की एक जानी मानी शख्सियत खासतौर से मानी जाती थी, उस बिहार से उस कद को देखते हुए प्रधानमंत्री ने खुद, गृह मंत्री अमित शाह ने, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, शोक व्यक्त किया है। मुनमुन, Sudhakar, are there any personality traits of Mridula Sinha that his followers would fondly remember at this point in time? Was she an approachable leader? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और खासतौर से जो हम बात कर रहे हैं कि वो लोक कथाएं उन्होंने लिखी, और कई सारे वो लोक कथाएं, उसके वॉल्यूम्स भी अलग, बिहार की लोक कथाएं वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 में कुछ नॉवेल्स भी, नई देव यानी घरवास, और इस तरह की ये जो नॉवेल्स थे, इन्होंने जो इंटरेक्शन इनका रहा खासतौर से ग्रामीण परिवेश में उन तमाम तबकों के साथ, जो उनको कमजोर तबका कहा जाता है, उनके साथ उनका लगातार इंटरेक्शन रहता था। और हम लोगों को भी याद है कि वो दिल्ली में भी उनका घर है, वो राज्यपाल भी बनी, तो जब दिल्ली आती थी, अगर कोई मिलना चाहता है तो उनसे बहुत बड़े आसानी से मिल सकता था और संवाद कर सकता था। तो जो विषय, जो सामाजिक विषय हैं, सांस्कृतिक विषय हैं, साहित्य से जुड़े हुए विषय हैं, उनमें खासतौर से उनको चर्चा करना, उन पर संवाद करना, उसमें बहुत उनका इंटरेस्ट रहता था। इसके अलावा वो सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिय रहती थी। दिल्ली महिला आयोग की भी वो समय तक सदस्य रही, और उस दौरान उन्होंने तमाम महिलाओं की बहुत तरह से, एक तरह से कह सकते हैं, हेल्प की, कानूनी तरह से उनको कानूनी मदद दिलवाई। तो उस नाते, उस लिहाज से उनको याद किया जाएगा। हिंदी से जुड़ी हुई कई जो हिंदी सलाहकार समिति होती है, राजभाषा समिति होती है, इस तरह के संगठनों की भी वो सदस्य रही थी। और उनका अध्ययन अगर कहा जाए तो साइकोलॉजी में उनका अध्ययन था। MDDM कॉलेज मुजफ्फरपुर में, बिहार में, ये बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज माना जाता है। वहीं से उन्होंने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की थी। वहीं से उन्होंने MA भी अपना किया था। बाद में उन्होंने B.Ed की भी शिक्षा ग्रहण की थी। साल 1942 में उनका जन्म, माफ कीजिएगा मैंने छपरा कहा था, लेकिन 1942 में उनका जन्म मुजफ्फरपुर में ही हुआ था। और राम कृपाल सिन्हा, मैंने जानकारी दी, उनके हस्बैंड थे, वो एक MP भी रहे थे बिहार में, कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे। तो एक तरह से परिवार में भी राजनीति की विरासत उनको मिली थी। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर उनके योगदान के लिए हमेशा मृदुला सिन्हा को याद किया। Absolutely, Sudhakar. In fact, Prime Minister Narendra Modi has tweeted on the demise of Mridula Sinha, and so has Union Home Minister Amit Shah. But Sudhakar, she had written more than 46 books in various disciplines. Shows the kind of knowledge that she had assimilated over the years. She also had very humble beginnings, isn't it? Because she was a college lecturer, and then she rose through the ranks in BJP and eventually became the governor of Goa. जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और जो उनकी सहजता थी, जो सरलता थी,
लोगों से वो जो संवाद करती थी, वो जो मिलती जुलती थी, और जो उनकी भूख थी बहुत ज्यादा पढ़ने की, बहुत ज्यादा लोगों से इंटरैक्ट संवाद करने की, लोगों की मदद करने की जो भूख थी, उसकी वजह से उनका जो काम का दायरा वो लगातार बढ़ता गया। वो 1981 में जो बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव है उसकी मेंबर बनी थी, और साल 2014 तक करीब 35 साल वो बीजेपी की सदस्य रही, जब तक वो गोवा की गवर्नर नहीं बनी। और उससे पहले वो कभी बीजेपी महिला मोर्चा की प्रभारी, एनजीओ सेल की प्रभारी रही। इसके अलावा बीजेपी की वो वाइस प्रेसिडेंट भी रही, वुमेन सेल की को कन्वीनर रही, इलेक्शन इंचार्ज उनको बनाया गया कई अलग अलग क्षेत्रों के लिए। तो राजनीति में भी खासा दखल था, और उनकी वो एक जरूर लगातार वो वकालत करती रही थी कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, और राजनीति जैसे जो क्षेत्र है उसमें भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी, हिस्सेदारी करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर उन्होंने जो करीब जो 46-47 किताबें लिखी थी, उनमें से कई किताबों को लेकर, जैसे जो मेहंदी के रंग, उस पर दूरदर्शन ने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी, नई देवयानी, घरवास, सीता पुनी बोली, सावित्री, इस तरह की जो कई जो चीजें थी उसको लेकर उन्होंने, और खासतौर से उनका इंटरेक्शन राजमाता विजय राजा सिंधिया के साथ बहुत ज्यादा था। उनकी उन्होंने बायोग्राफी भी लिखी थी, ये राजपथ से लोकपथ, और राजमाता विजय सिंधिया से जुड़ा हुआ जो ट्रस्ट है, न्यास है, उसकी भी वो आजीवन सदस्य रही थी। निश्चित तौर पर एक क्षति महिला जगत में, कह सकते हैं साहित्य के जगत में, राजनीति के जगत में, जिसको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी रेखांकित किया। Ashwini, our correspondent, is also with us. Ashwini, what are the lasting impressions that a personality like Mridula Sinha leaves on the minds of us all? जिस तरीके से अभी सुधाकर ने बताया पूरा उनका व्यक्तित्व, कृतित्व, अभी जब हम लोग राजमाता विजय राजे सिंधिया पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, मेरा कई बार उनसे मिलना भी हुआ। बेहद सरल, बेहद सहज और सर्वथा सुलभ, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, उसमें एक अपना अलहदा मुकाम बनाने के बाद भी इतना सरलता, सहजता और सर्वसुलभता, वो उनकी व्यक्तित्व को खुद ही बताता है कि किस तरीके से वो लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में थे। चाहे राजनीतिक रूप में देखें, चाहे महिला सशक्तिकरण के रूप में देखें, चाहे लेखिका के रूप में देखें, तकरीबन 50 के आसपास पुस्तकों की रचना। और अभी मैंने उनसे खुद बीच में इंटरव्यू के दौरान पूछा भी था कि इस समय अभी आप क्या कर रहे हैं, तो उनका सृजन मेरा जारी है, लिखन मेरा जारी है, जल्दी ही मेरा एक और उपन्यास आएगा। तो आप ये समझे कि लगभग 78 वर्ष की अवस्था में इतनी ऊर्जा के साथ सामाजिक सरोकारों को लिपिबद्ध करना, अपने लेखनी से उतारना, और वो अनवरत प्रक्रिया चलती रही, चाहे वो एक छोटे से विद्यालय में अध्यापन से लेकर राजभवन तक का सफर हो। तो आप ये समझिए कि मृदुला जी का जो पूरा का पूरा जीवन है एक ऐसी यात्रा है, ऐसी साधना यात्रा है, जिसको लोग अलग अलग पड़ावों में देखें तो महिलाओं के अपने खुद आत्मविश्वास और महिलाओं के अपने खुद सशक्तिकरण, और साथ ही साथ महिला और नारी धर्म का सहज निर्वहन जो है वो भी उनके व्यक्तित्व में दिखता है। इससे कुछ ही वर्षों पहले उन्होंने, जब वो गोवा की राज्यपाल थी, उन्होंने अपनी पुस्तक जो आत्मकथा से लिखी है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसार, पत्नी मनोरमाम देहि का उन्होंने विमोचन किया था। अभी जब हम लोगों की मुलाकात हुई तो मुझे, हमारे साथ में जो कैमरा क्रू टीम थी, सबको उन्होंने अपनी पुस्तकें भेंट की, और एक सहजता, वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो सहजता उनके जीवन का और उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग था। और उसके अलावा अगर आप देखें तो चाहे अटल जी सरीखे महान व्यक्तित्वों के साथ काम करना हो, चाहे राजमाता विजया राजे सिंधिया के साथ काम करना हो, चाहे महिला मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना हो, या फिर गोवा के राज्यपाल के रूप में, हमेशा उनका जो चाहे दिल का दरवाजा कहें, चाहे घर का दरवाजा कहें, या फिर जीवन एक खुले रूप में था लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, उनके प्रशंसकों के लिए, उनके लेखन के जो सुधी पाठक जन थे उनके लिए हमेशा उनकी उपलब्धता सर्वथा उपलब्ध रहती थी, सुनिश्चित होती थी। सुनिश्चित तौर से उनका इस समय जाना, चाहे राजनीति हो, चाहे वो साहित्य जगत हो, एक शून्य उभरा है मुनमुन, और वो शून्य कहीं न कहीं वर्तमान लोगों के जो साहित्यिक वर्ग के लोग हैं उनके लिए भर पाना एक चुनौती हो।
Absolutely. So, a leader with very humble roots, a leader that was very approachable, believed in simplicity and modesty, a leader who strongly believed in social welfare, who had a lot of interest in writing and was a prolific writer, had a lot of knowledge about Indian culture, local traditions, is now no longer with us. Well, thank you, Ashwini, as well as Sudhakar, for having joined us with those inputs. President Ramnath Kovind conferred Jawaharlal Nehru University's 4th annual convocation as the chief guest, and also present at the occasion was Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank, who presided over the event as the guest of honor. The convocation program started with JNU's Vice Chancellor M. Jagdish Kumar's address, which was followed by other professors. On the occasion, President Kovind extended his congratulations to the university's students and teachers and said that the university continues to provide the nation with the brightest of minds. Person associated with JNU for setting high standards in various academic domains, ranging from social sciences to science and technology. Both teaching and research here have made an impact in the world of academics. That is why JNU attracts students from all parts of the country and even from abroad. Meanwhile, Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank in his address said that we can fulfill the goal of our nation building by connecting with ideology and the nation. 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। विचारधारा को राष्ट्रीय धारा से जोड़कर हम राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। असली शिक्षा का एक ही मकसद है और वह है चरित्र निर्माण से व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति से पहले राष्ट्र की सोच के साथ हम जीवन के इस दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां चुनौतियां केवल शैक्षिक ही नहीं बल्कि अब जीवन की तमाम वास्तविकताओं से भी जुड़ी होंगी। अब आपको एक योद्धा के रूप में अपने जीवन की हर परीक्षा का सामना करना है और हर प्रश्न का उत्तर भी देना है। BJP has asked the Congress leadership to come clean on allegations that kickbacks were paid to them in the Augusta Westland VVIP chopper deal. अब जब भी कांग्रेस का नाम आता है और रक्षा के सौदे आते हैं, ये बहुत दुख की बात है कि एक तरफ हमारे जवान अपना बलिदान देते हैं देश की रक्षा करने के लिए और दूसरी तरफ जिन लोगों को सत्ता की जिम्मेदारी दी जाती है वो सेना को इक्विप्ड करने की जगह घोटालों के जो डील करते हैं वो घोटालों के सोच विचार करके करते हैं। जहां जीप घोटाला, बफोर्स घोटाला, टाटा ट्रक घोटाला, स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला से अब अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, ये सारे के सारे कांग्रेस के समय और सारे के सारे रक्षा मंत्रालय से संबंधित ये घोटाले। ये 3000 करोड़ रुपए का अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का घोटाला का मैंने आपको सामने विवरण दिया अभी। Let's now come to an update on COVID-19 situation across the country. 44,739 recoveries were recorded yesterday, taking the cumulative total of recovered patients to 83,35,109. With this, the recovery rate currently stands at 93.52%. India's three-pronged strategy of test, trace and treat is proving to be a success. The fatality rate has dropped to 1.47%. With 1,30,993 deaths recorded so far, the number of active COVID-19 cases in India stand at 4,46,805, which is 5.01% of the total cases reported so far.
Classes for around 67,000 first-year undergraduate students at Delhi University began virtually today. The classes began after a delay of nearly 4 months due to the COVID-19 pandemic and the subsequent lockdown. From the delay in board exam results to soaring DU cutoffs followed by the lengthy admission process, the entire process was done online. Also, colleges have opted for online orientation process, introducing new students to the campus virtually. Residents of Colombia's Providencia Island were left homeless on Tuesday as the island got hit hard by a powerful Category 5 Hurricane Iota, which caused severe damage to a majority of public infrastructure. Colombia President Iván Duque has said that it is the most serious of hurricanes to have ever hit the Andean nation. The Colombian government has confirmed 98% of infrastructural damage due to Iota. Most of the region's residents are unable to make contact with their kith and kin as internet and telephone services are down for the past 24 hours. Fierce winds and floodwaters raged through Central America, hitting Honduras yesterday as Iota pummeled the region and forced thousands to evacuate their homes. Central America and southern Mexico are still reeling from Hurricane Eta, which caused havoc just 2 weeks ago. Authorities are now working to get emergency supplies to residents who have been devastated by Iota. US President Donald Trump is set to sharply reduce the number of US forces in Afghanistan and Iraq. The number of service personnel in Afghanistan will fall from 4,500 to about 2,500. Acting Defense Secretary Christopher Miller confirmed the drawdown, also outlining a modest withdrawal of forces in Iraq that will reduce troop levels from 3,000 to 2,500. Although moments after the announcement, top Republican leader in the Senate, Majority Leader Mitch McConnell, opposed the move, warning against any major changes in U.S. defense or foreign policy in the next couple of months, including major troop drawdowns in Afghanistan and Iraq. Along with McConnell, other senior Republicans have also voiced concerns. Texas Republican Mac Thornberry has called the move a mistake, saying cutting troops would undercut negotiations aiming to bring an end to fighting in Afghanistan. Many U.S. and Afghan officials have also warned of the rise in levels of violence by Taliban insurgents and persistent Taliban links to Al-Qaeda after the move. In Peru, 76-year-old lawmaker Francisco Sagasti has been sworn in as interim president. Francisco Sagasti promised to restore trust in the government of the country that has witnessed deadly protests and the departure of 2 presidents over the last week. He also paid homage to 2 young men who died during protests that erupted last week when Congress voted to oust a popular predecessor. Sagasti will serve as interim president until the end of July 2021, with the new presidential election scheduled for 11th April next year. Sagasti is Peru's 4th president in less than 3 years who is yet to finalize his cabinet. That's it then in this edition of the news, but do remember to wear your mask whenever you step out of your homes and be part of Doordarshan's Mask Up India campaign. Stay tuned. Namaskar.